And dear students, today I'm going to discuss elastomers with you. Elastomers, we also call them rubbers. Elastomers are those materials which have elasticity in them. What is elasticity? Elasticity is the ability that if you apply force or pressure on a material, it does not breaks or it does not snaps. It's so flexible, it's so elastic that it stretches. It has ability to stretch. So this ability is known as elasticity. तो whenever we apply pressure on some elastomer, ये टूटेगा नहीं बल्कि ये स्ट्रेच हो जाएगा. इट इज़ जस्ट योर सिंपल इलास्टिक्स और इलास्टिक मटेरियल्स दैट यू सी अराउंड अस. you every day you see so many materials around you which have elasticity. नहीं जैसे आपका इलास्टिक है, itself इलास्टिक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं, या फिर आप सिंपल जैसे आज ग्लव्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं. ग्लव्स आप देखिए जो लेटेक्स के ग्लव्स हैं, आप उनको स्ट्रेच कीजिए, दे विल स्ट्रेच, दे विल नॉट ब्रेक एट वंस. ऑल दीज मटेरियल्स आर योर इलास्टिक मटेरियल्स. प्लास्टिक की चीज़ें एट टाइम्स होती है, जैसे आप देखिए ब्रश है आपका, प्लास्टिक का जो ब्रश है, आप उसको बेंड कीजिए अप टू अ सर्टेन लिमिट, इट विल बेंड एंड देन इट विल नॉट ब्रेक. ऑल दीज मटेरियल्स आर योर इलास्टिक मटेरियल्स. सो इलास्टोमर्स आर बेसिकली दोज मटेरियल्स विच हैव इलास्टिसिटी इन दैम. सो इलास्टोमर्स जो है, सबसे पहले जो हम इलास्टोमर हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ रबर, which was found in nature, rubber. But the thing is, now rubber itself is not widely used. If you will see on an average, every day you come across so many elastomers all around you, in the form of whatever plastic or elastic material you see. It could be tires of your car, it could be scuba diving dress, it could be gloves, it could be your brush, it could be utensils, plastic utensils, it could be packaging material, it can be polythene. There is no end to this list. The list is very very long. So the thing is कि जो हमारे पास ये इलास्टोमर्स हैं, जो हमें नेचर में रबर मिला था, उससे उसका जो स्ट्रक्चर है, when it was studied, after that modifications were carried out on rubber also, जो हम बहुत commonly synthetic rubbers देखते हैं, neoprenes देखते हैं, और उसके बाद हमारे पास बिल्कुल completely synthetic materials भी हमने synthesize किए, जैसे nylon है, ऐसी चीज़ें which have no natural background but they have been synthesized in labs. So elastomers, those materials which are elastic in nature, they are flexible, they have ability to withhold pressure, they change their form when pressure is applied on them. But the most important part is they stretch, but when pressure is released they come back to its original shape. That is the most important part. Not only this, that they can be stretched, but this ability that when stretched, when pressure is applied, they stretch but they come back to their original form. So elastomers are of two types: thermoset elastomers and thermoplastic elastomers. Thermoset elastomers are those elastomers, thermoset that means set heat, जब इनको एक बार synthesize किया जाता है, these elastomers they take their shape. Once formed, they will not they cannot be remolded. You know, आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं या प्लास्टिक यूटेंसिल्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती है, आप उनको once you heat them, they will melt and they will change their shape. On cooling, they will take the shape of whatever shape you gave them when it was soft. But thermoset are those plastics or those elastomers that when they are heated, when they get once they are produced, if you heat them after that, they will just break down, they will not lose their shape. ऐसे बहुत सारे materials हैं हमारे पास, जैसे silicones हैं, polyurethanes हैं, once they are formed, that's it. और उसके मुकाबले में जो थर्मोप्लास्टिक है, these are those materials once formed, they can be remolded again and again. By heating them, you can give them completely, they have reversible behavior. You can again heat them and you can change its shape. So as I have shared material with you, I'll bring your attention to these 4 diagrams. Actually, the properties of elastomers, they more or less depend upon their molecular structure. More or less not, they completely depend upon their molecular structure. Polymeric chains, they can take different forms. They can be linear, simple linear polymeric chains.
They can be branched polymeric chains, that means each polymeric chain has different branches coming out of it, or they can be cross-linked. You will see their examples that at times what happens that there are elastomers which form just a network type. They are cross-linked, they have less elasticity, and then there are some polymers elastomers in which polymeric chains, they are simply entangled together. For example, आप क्या कीजिए, ढेर सारे धागे जो हैं उनको एक धागा काट के रखिए, दूसरा तीसरा ऐसे, just ना throw them together, so the shape they take is entangled. That is how certain polymeric structures are. So it depends upon the shape at molecular level, that how exactly a elastomer will behave. So elastomer has different properties on which they are judged. Each elastomer has different degree of elasticity, different degree of flexibility. You see, the first property of an elastomer is its hardness. I can say that hardness or softness, that hardness of elastomer is very low. You just keep rubber in mind, that it's not very hard, rubbery materials. If you put pressure on them, they will compress. So when there are different elastomers are prepared, their hardness is measured using different methods. एक truncated cone जो है वो यूज़ की जाती है, उसको प्रेस किया जाता है और देखते हैं कि मतलब वो कितनी उसकी शेप ले लेती है truncated cone की. डिपेंडिंग अपॉन डैट हार्डनेस ऑफ इलास्टोमर इज मेजर्ड. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डैट दे शुड हैव रीबाउंड इलास्टिसिटी. रीबाउंड का मतलब होता है आप किसी पर कोई चीज़ फेंके एंड इट कम्स आउट ऑफ दैट सरफेस. तो ये जो है हमारे पास रिबाउंड इलास्टिसिटी, इट इज़ मेजर्ड बाय ड्रॉपिंग अ हैमर. क्या करते हैं जब भी कोई इलास्टोमर दे सिंथेसाइज, दे विल ड्रॉप अ हैमर ऑन इट. सो जो हमारे पास पॉलीमर है उसका इलास्टिक नेचर है, रीबाउंड है, उसमें वो जितना नीचे जाएगा उतना ही डायरेक्शन में वापस आएगा. उसकी वजह से हैमर जो है अपना मोमेंटम, इट विल गो बैक टू हैमर एंड इट विल rebound. So they see how much momentum is lost when you throw a hammer, how much hammer gains its position back, कितना वापस आता है. तो on that basis they measure the rebound elasticity. तो elastomers have very high tensile strength. This is their most important characteristic. Tensile strength, as you must be knowing already, that tensile strength is the characteristic of an elastomer which determines that how much pressure it can take. आप किसी चीज़ को कितना फोर्स अप्लाई करते हो जब जहाँ पर जाकर वो टूट जाता है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ. कि एक पर्टिकुलर मटेरियल कितना वजन, कितना प्रेशर, कितना फोर्स सस्टेन कर सकता है. हमारे पास इलास्टोमर्स, दे हैव वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. दैट मीन्स दे कैन टेक वेरी गुड लोड बट दे विल नॉट ब्रेक. एक लिमिट होती है, उसके बाद जब आप उन पर प्रेशर या लोड अप्लाई करेंगे दे विल ब्रेक ऑफ. तो उसके बाद इलास्टोमर्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक है अल्टीमेट इलोंगेशन. अल्टीमेट इलोंगेशन, यू नो दैट इलास्टोमर्स जो हैं दे हैव एबिलिटी टू स्ट्रेच. सो मतलब यू कैन स्ट्रेच देम सो मैनी टाइम्स, 7 टाइम्स उनकी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे ज़्यादा भी आप उनको स्ट्रेच कर सकते हैं. तो जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इलोंगेशन की प्रॉपर्टी है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है. जितनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा इलोंगेशन की कैरेक्टरिस्टिक है. इसमें हमारे पास एक टर्म होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस. इसमें हम डिफरेंट इलास्टोमर्स का जो है ये मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ calculated as stress by strain. कि हमारे पास जो है हमारे जितने डिफरेंट इलास्टोमर्स हैं उनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना ज़्यादा है. ये हम देखते हैं कि किसी चीज़ पर हम मतलब कितना स्ट्रेस जो है हम जनरेट कर रहे हैं अगेंस्ट कितना स्ट्रेन जो है हमने उस पर्टिकुलर इलास्टोमर पे डाला है. तो ये हमारे इलास्टोमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इलास्टोमर्स जस्ट कीप इन माइंड दैट दे आर, देखिए जो ये आप यूनिट आप पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में यू आर स्टडिंग द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ polymers. So what all these things are you are studying, they are all industrial applications. जो मैं इलास्टोमर्स भी आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये सब इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं कि कैसे हमारे आसपास इंडस्ट्रियल लेवल पे इलास्टोमर्स जो हैं हम उनको यूज़ करें. और अब आपने देखा उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिज़ायरेबल है. फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी हाई, शुड बी एबल टू टेक स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा लेना चाहिए. इट शुड बी एबल टू बेयर स्ट्रेस अलॉट.
उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस की थी, जैसे सबसे पहली एग्जांपल है आपके पास नेचुरल रबर। देखिए नेचुरल रबर का ये मोनोमेरिक यूनिट है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट डालते हैं जो हमें क्या करवाता है, इसकी पॉलीमराइजेशन कराता है, तो ये यूनिट बन जाता है। फिर यहाँ से फिर से आएगा CH2, C डबल बॉन्ड C, फिर से यहाँ CH2 एंड सो ऑन, दिस चेन गोज़ ऑन एंड ऑन। सो जो आपकी नेचुरल रबर, नेचुरल रबर हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल रबर कम्स फ्रॉम, आपने देखा होगा कभी ट्रीज़ के साथ, अगर आप यू हैव ट्रैवल्ड स्पेशली टुवर्ड्स साउदर्न पार्ट, तो आप देखेंगे कि ट्रीज़ के साथ बकेट्स लगा के होती हैं और उससे वो नेचुरल रबर जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल रबर जो है हमारे पास ये एक प्रिकर्सर थी रबर की, उसके बाद इट्स नॉट यूज्ड वेरी ऑफन नाउ बिकॉज इसमें जो है हमारे पास इसकी अब हमने जो सिंथेटिक वेरिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं। बिकॉज देखिए इसमें मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बताए थे कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, ब्रिटल होती है, रबर बहुत जल्दी ब्रेक ऑफ हो जाती है स्पेशली एट लो टेम्परेचर, और ये पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसकी डिफरेंट वेरिएशन हमारे पास आ गई हैं, जैसे कि सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन रबर है या बूनाइस रबर है। तो ये सारी जो है हमारे पास इसकी क्या है वेरिएशंस। तो ये जो जितनी भी वेरिएशंस हैं इन सब में आप देखेंगे कि आपके पास मोनोमर्स जो है उसमें डिफरेंट मोनोमर्स हैं, तो और उनकी पॉलीमराइजेशन करके नेचुरली जो चेन बनी है उसमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं। जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट आ जाते हैं तो नेचुरली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाती है। तो कोई पोलर बन जाता है, कोई नॉन पोलर बन जाता है, किसी में ऑयल रेजिस्टेंस है, किसी में बहुत अच्छी वाटर रेजिस्टेंस है, किसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। सो ऑल दीज वेरिएंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटीज़। उनको डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे कि जिसमें गैस इम्परमिएबल, आपके पास इन सिंथेटिक रबर जो है ये गैस इम्परमिएबल है, डैट इट विल नॉट लेट गैस पास थ्रू इट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, उसकी वजह से टायर्स और बास्केटबॉल्स की जो इनर ट्यूब होती है वो हम सिंथेटिक रबर की बनाते हैं। जो नियोप्रीन रबर है ये भी बहुत पॉपुलर रबर है। अब देखिए पोलर है, इसकी वजह से ऑयल्स वगैरह में डिज़ोल्व नहीं होती है, उस वजह से जो आपकी केबल्स वायर जिनको ऑयल जिनके आसपास ऑयल होता है या रिएक्टर वेसल्स में, उसमें हम नियोप्रीन रबर्स यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपकी जो बूनाइस रबर है इसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत हाई है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, तो लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, उस वजह से हम इसको ऑयल्स और सॉल्वेंट्स के आसपास नहीं लेते हैं, बल्कि जैसे कि आपकी शू सोल है या टायर प्रोडक्शन या कार्बेट बैकिंग वगैरह, इन सब में हम ये बूनाइस रबर यूज़ करते हैं।